Hello everyone. Today we are going to start exercise 4.1 chapter number 4 simple equations. First exercise करेंगे. Complete the last column of the table. Equation is given x plus 3 is 0. Value is x is equals to 3. Say whether the equation is satisfied yes or no. इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नो मीन्स एक्स की जो वैल्यू गिवन है इसे हम इक्वेशन में पुट करके देखेंगे. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो यस ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज नो. जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की x प्लस 3, यहाँ पे x को पुट करेंगे 3, सो 3 प्लस 3 डेट इज 6. बट राइट हैंड साइड तो 0 है, 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो नॉट सेटिस्फाइड. x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें हमें x को पुट करना है 0. 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3. 3 is not equals to 0. Left hand side and right hand side are not equal. So this value did not satisfy the equation. Next is minus 3. X की जगह पे put करेंगे minus 3. So minus 3 plus 3 that is equals to 0. और right hand side में भी 0 है. तो this value will satisfy the equation. तो we will write yes here. ठीक है. और अगर मुझे इक्वेशन दी हो और मुझे पूछो कौन सा इसका सॉल्यूशन है, तो जैसे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करके देखो तो x की वैल्यू -3 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. नाउ नेक्स्ट इज x इज इक्वल्स टू 7. इक्वेशन इज x minus 7. x की वैल्यू 7. 7 minus 7 is 0. राइट हैंड साइड इज 1. 0 is not equals to 1, so no. नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 8 पुट करना है हमें. 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1. राइट हैंड साइड में भी 1 है, सो दिस इज इक्वल. सो यस इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. क्लियर कैसे करना है ये क्वेश्चन? इसी के और पार्ट्स हैं, कंटिन्यू करेंगे. नाउ x इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू 0. 5 इंटू 0 इज 0. 0 इज नॉट इक्वल्स टू 25. ठीक है, सो यहाँ पे आ गया नो. नेक्स्ट में अब आप बताएंगे आंसर. यस एकम 7th पार्ट का आंसर बताएंगे. सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही? Yes, ma'am. यस 5x equals 25. यस. So की वैल्यू 5 पुट करेंगे. 5 5s आर 25. It is equals to right hand side. So yes, this value will satisfy the equation. विराट नेक्स्ट बताएंगे. No. No. Okay. Ma'am, 5 multiplied minus 5 is equals to minus. X is equals to -5 is given. So 5 into -5 is -25. But right hand side पे हमारे पास 25 है. So this is not equal. So this value will not satisfy the equation. Viraj, next one. m by 3 is equals to 2. Left hand side में m की वैल्यू पुट कीजिए विराज. मैम m की वैल्यू है मैम -6/3. यस क्या आया? मैम नॉट मैम -2 that is not equals to 2. मैम नो इट विल नॉट सेटिस्फाई. Yes. Next one, Ekam. m upon 3. m is 0. Yes, Ekam. What will be the answer? मैम नो. 0 upon something is 0. 0 is not equals to 2. So no. Virat. Yes, Virat. 6/3 is equals to 2. Ma'am, it is not is equals to 2. Not equals to Ma'am, sorry, it is. 2 is equals to right hand side. So yes, this is the question number 1. So let us move to the next question now. Check whether the brackets is a solution to the given equation or not. क्या ये वैल्यू सॉल्यूशन है? ये कैसे पता चलेगा? अगर इस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है, then this is the solution of equation, otherwise. So n plus 5 is equals to 19. Take left hand side. Left hand side is n plus 5. And what is the value given? N is equals to 1. So 1 plus 5 is equals to 6. 6 is not equals to 19. So n is equals to 1.
is not the solution of given equation. So like this we will solve it. So moving to the B part, 7n plus 5 left hand side लिया मैंने, n is -2. 7 multiply -2 -14 plus 5, what will be the value? -9 और right hand side में है 19. So n is equals to -2 is not the solution of given equation. Okay, एक part और मैं करवाती हूँ, then you will give the answer for the next part. 7n plus 5. Now n is 2. 7 into 2, 14 plus 5, that is 19. और राइट हैंड साइड में साइड ली नहीं है हमारे पास, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो n is equals to 2 is solution of given equation. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे. B part is left hand side is p minus 3. P is equals to 1. एकम solve this. P की वैल्यू 1 पुट करनी है. एकम सॉल्व करेंगे D पार्ट. Yes, ma'am. चलिए वन बाय वन सभी सॉल्व करेंगे. एकम क्या आया सॉल्व करके? Ma'am, what? सॉल्व करके क्या आया बच्चा? Ma'am, the answer was coming 1. 1. So 1 is not equals to 13. Right hand side was 13. So 1 is not equals to 13. So P is equals to 1 is not the solution of given equation. विराट नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. विराज आप उससे नेक्स्ट. यस विराट. -16 P is not equals to -19, that is not equals to 13. Right hand side is 13 again for the part also. Yes, so P is equals to -4 is not the solution. Viraj, next one. Ma'am, can you show the previous slide for a second? Yes. चलिए विराज बताइए इसे सॉल्व करने पर क्या आया? मैम, ओके. क्या आया विराज? 4 into 0 0 -3 that is not equals to 13. so P0 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा बताइए. एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी क्या होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन? यस, देखो क्या इक्वेशन थी? 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13. 13 3 उधर लेके गए 16. यस, so p is equals to 4 will be the solution of this equation. ठीक है, चले नेक्स्ट पे. yes, ma'am. Okay, let us move to the next one. Solve the following equation by trial and error method. So left hand side में हम values put करेंगे p की.
5p plus 2 is the equation. तो राइट हैंड साइड चेक करेंगे क्या आ रही है हमारी. सो p की वैल्यूज लेंगे, 5p plus 2 में पुट करेंगे, सॉल्व करके क्या आ रहा है. p को 0 पुट किया, 5 into 0 is 0 plus 2, आंसर आएगा 2. 1 पुट किया, 5 into 1, ट्रायल मेथड से करना है तो वी विल डू लाइक दिस ओनली. 5 plus 2 7, हमें 17 चाहिए. 5 2s are 10 plus 2 12, 3 पुट किया, 5 3s are 15 plus 2 17, और राइट हैंड साइड यही थी हमारी. सो p is equals to 3 is solution of given equation. Okay, moving to the next part. सेकेंड पार्ट, m की वैल्यू पुट करनी है 3m minus 14. m को 0 पुट किया, 0 into something is 0 minus 14. 1 पुट किया, 3 1s are 3 minus 14, so minus 11. 2 पुट किया, 3 2s are 6 minus 14, minus 8. Then 3 पुट करेंगे, 3 3s are 9 minus 14, minus 5. 4 पुट किया, 3 4s are 12 minus 14, minus 2. 5 पुट किया, 3 5s are 15 minus 14, 1. 6 पुट किया, 3 6 are 18 minus 14, 4. So this is right hand side. So m is equals to 6 is the solution of the given equation. Easy है? Yes, ma'am. Okay, come, you can switch it off. चलिए, write equation for the following statement. अब हमें equations लिखनी है. The sum of the numbers, sum का है तो प्लस का साइन लगाओ मिडल में. कौन कौन से नंबर का सम? Sum of the number x and 4 is 9. Okay, second part. एकम, tell me second part में क्या equation बनेगी? ट्राई करेंगे सारे, चलिए. एकम, try second. y minus 2 equals 8. Y minus 2 equal 8. Let me see. Difference between y and 2 is 8, right? Next, Viraj, 10 times a is 70. Ma'am, a into 10. ओके, तो हम कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं, a into 10 नहीं 10a लिखेंगे, ठीक है. कांस्टेंट टर्म वेरिएबल से ऑलवेज जब मल्टीप्लाई होते हैं उसे पहले लिखा जाता है. विराट, नेक्स्ट वन, फोर्थ. 20 is equals to 20. Fourth part, बच्चा, you are telling me fifth one. The number b divided by 5 gives 6. Number b is equals to 30. नहीं, हमें पहले इसी फॉर्म में लिखना है. नंबर b डिवाइडेड बाय 5, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है. जिस फॉर्म जो कहा है उसे दिखना चाहिए हमें इक्वेशन में. b डिवाइडेड बाय 5. अगर इसका सॉल्यूशन पूछा होता तो लास्ट में b इज इक्वल्स टू 30 लिखते. फिफ्थ पार्ट, 3/4 of t. 3/4 of t is equals to 15. Next, take on sixth part. Yes, ma'am. 7 times m plus 7 gets you 77. Yes, तो क्या Ma'am, m ओके, पहले देखो 7 टाइम्स m मतलब 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई m से. 7 टाइम्स m ये बना 7 टाइम्स m प्लस 7 gets you 77. विराज, नेक्स्ट पार्ट. and 1/4 minus 4 is equals to 4.
1/4 ऑफ अ नंबर, पहले नंबर मानेंगे, लेट द नंबर बी x, कौन सा नंबर का 1/4? अगर 1/4 माइनस वो कर देंगे 4, तो इक्वेशन में वेरिएबल तो है ही नहीं। 1/4 ऑफ अ नंबर, कौन से नंबर का? लेट द नंबर बी x, so 1/4 of x minus 4 gives 4. Next Virat, 8th part. If you take away 6, take away मतलब माइनस करेंगे from, किसमें से? 6 times y, you get 60. अगर सॉल्यूशन करने को कहेंगे then we will solve. अभी हमें सिर्फ इक्वेशन लिखने को कहा है, so we will write. अगर सॉल्यूशन पूछा था तो आंसर ही लेंगे। If you add 3 to किसमें? 1/3 of z, you get 30. Clear everyone? स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Okay, let us move to next one. Write the following equation in statement form. Previous question में हमें statement form given थी, हमने equation बनाई थी. अब equation given है, statement बनाएंगे. Okay, बताइए. जैसे p plus 4, sum of number p and 4 is 15. We can write like this, sum of number p and 4 is 15. Second part के लिए 7 subtracted from m will give you 3. 7 subtracted from, किसमें से subtract हुआ है 7? 7 subtracted from m gives 3. यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7 taken away from m gives 3. Twice the number m, 2 है, 2m है, मतलब मल्टीप्लाई हो m से ही, ट्वाइस द नंबर m भी लिख सकते हैं, या और क्या वे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ m एंड 2, या 2 and m gives 7. ट्वाइस द नंबर m कितने वे से लिखी जा सकती है स्टेटमेंट? gives 7. नेक्स्ट, m डिवाइडेड बाय 5 gives 3. अब नेक्स्ट आप लोग ट्राई करेंगे फिफ्थ पार्ट. विराट ट्राई करेंगे. क्या लिखोगे? देखो, we can write it like two ways. 3/5 of number m या thrice a number m divided by 5 gives 6, या 3/5 of number m gives 6. जो भी आप लिखना चाहो. thrice a number m, पहले नंबर m को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड किया, gives 6. एकम. नेक्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे. 3p plus 4 is equals to 24. यस एकम. सिक्स्थ पार्ट. 3p plus 4 is 25. कैसे लिखे इसे? Ma'am, 3 times p plus 4 equals 25. Thrice a number p, जब 3 times a number p, thrice a number p, जब 4 is added to thrice a number p, 4 पहले भी लिखा जा सकता है, प्लस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. 4 is added to, किसी भी तरह से लिख सकते हो, thrice a number p gives 25. Viraj, next one. 4p minus 2 is 18. Oh, 4 multiplied by p minus subtracted by 2 gives 18. Subtracted by 2 तो कुछ नहीं होता, by तो डिवाइड में आता है. 2 subtracted from 4 times a number p, the 2 taken away from, 2 बाद में आया है, so 2 subtracted from, किसमें से subtract हुआ है? 2 subtracted from 4 times a number p
gives 18. Next, Virat. And 2 added to P divided by 2 is equals to 8. Gives 8. A number divided by number P divided by 2 plus 2 is 8. The 2 is added to half of number P gives 8. किसी भी वे से लिख सकते हो. 2 is added to half of a number P gives 8. There are many ways to write, but वो जो आपने लिखा है that should be correct. ठीक है. नेक्स्ट वन, सेट अप एन इक्वेशन. अभी हमने इसमें सिर्फ इक्वेशंस बनानी है. सॉल्व हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा. इरफान सेज दैट ही हैज 7 more marbles more than 5 times the marble Parmeet has. Take m to the number of marbles Parmeet has. Let Parmeet has m marbles. हमें गिवन है कि उसका जो मार्बल है m ले लो. Let Parmeet has marbles is equals to x. m, सॉरी, m से डिनोट करने को कहा है तो m ले लो. ओके, हु विल टेल मी द मार्बल्स ऑफ इरफान? यस, एनी वन ऑफ यू? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इरफान सेज ही हैज. इरफान कहता है मेरे पास कितने हैं? 7 मार्बल्स मोर. मोर मतलब प्लस, तो मैंने पहले +7 लिख दिया. जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे लिखते जाओगे तो गलती नहीं होगी. 7 मार्बल्स मोर मतलब +7. किससे? 5 टाइम्स. 5 टाइम मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. द मार्बल परमीत है. परमीत के पास कितने थे? m. इरफान के पास, इरफान है 37 मार्बल्स. ये भी मार्बल्स इरफान के आए और उसके पास टोटल है 37. तो हमारे पास इक्वेशन बनी 5m plus 7 is equals to 37. क्लियर एवरीवन? दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. इरफान ने कहा he has 7 marbles more means +7. किससे साथ ज्यादा? 5 times the marble Parmeet has. परमीत के पास m थे तो 5 टाइम्स m प्लस 7. और ये जो 37 मार्बल्स दिए हैं ये भी इरफान के हैं. ये दोनों 5m प्लस 7 और 37 दोनों इरफान के ही मार्बल्स हैं, तो दोनों को इक्वल रख दिया. हमें इक्वेशन मिल गई. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. सेकंड पार्ट. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? लेट्स सी. ओके. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. अगर लक्ष्मी की एज कह रही है y years ले लेते हैं. Let age of Lakshmi y years. ये हमें गिवन है कि लक्ष्मी की y years ले लो. तो उसके फादर की एज ऑफ लक्ष्मी's फादर. हाँ जी, ट्राई करेंगे इक्वेशन बनाने की सारे. लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. ये लक्ष्मी के फादर की एज है. ही इज 4 years older. ओल्डर मतलब बड़े, तो +4. 4 year older किससे? 3 times लक्ष्मी's एज. इज दिस द इक्वेशन करेक्ट? यस. हमें क्या है? लक्ष्मी's फादर इज 4 years older. 4 साल बड़े हैं तो +4. किससे? 3 times लक्ष्मी's एज. और उसके फादर की एज गिवन भी है कि 49 है. सो 49 इज इक्वल्स टू 3y + 4. अगर हमें इनका सॉल्यूशन भी पूछा होता तो हम इन्हें सॉल्व करते और लक्ष्मी की एज बताते. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. The teacher tells the class that highest marks obtained by student in her class is twice the lowest marks +7. Lowest marks हमें क्या है? L. Let lowest marks be L. So highest marks कितने होंगे? Who will try this equation? Yes, Virat, would you like to try?
कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगी, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मैक्सिमम यही होगा, लेकिन सीखोगे। क्या है? हाईएस्ट मार्क इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। क्या लिखोगे इसे? यस, ट्वाइस द लो, पहले 87 तो मैम 87 minus 7 upon 2 -7 अपॉन। equals to मैम कैन आई ट्राई विराज? हाँ जी विराज बताइए। मैम 2l plus 7 यस, is equals to 80. क्या है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स एल, तो पहले उसका ट्वाइस करो, 2l प्लस 7, और ये हाईएस्ट मार्क्स है और हाईएस्ट मार्क्स 87 भी गिवन है, तो इक्वल रख देंगे। सो हाईएस्ट मार्क्स इज 2l प्लस 7, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, और 87 भी हाईएस्ट मार्क्स गिवन है, तो दोनों मार्क्स इक्वल रखेंगे। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर विराट? एकम क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। In an isosceles triangle, vertex angle is twice the base angle. Isosceles means जिसकी दो sides equal हो। Vertex का जो angle है twice either the base angle, किसी भी base angle से twice है। अगर base angle, अच्छा इन्होंने B दिया है, चलो B ले लेते हैं। Isosceles triangle की दो side equal होती हैं, तो जो दोनों साइड का बेस है, बेस एंगल भी इक्वल होता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड इक्वल है, उनके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो दिस इज द वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल, सो 2b। रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल, तो इक्वेशन लिखनी है हमें इसमें। क्या होगी? तीनों एंगल का सम 180 होता है, so 2b plus b is equals to 180 degrees. Let base angle be b degrees. So vertex angle क्या हो गया? 2b twice का है base angle से, so हमें पता है sum of all the angles of triangle is 180 degree. So you can write it as 4b is equals to 180 degrees. Clear everyone? Is there any doubt in this exercise? You can make this rough figure also. ठीक है? Clear है सभी को? First exercise, is there any doubt? No ma'am. Okay.